آپ ایک طرف تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کو مس یوز کر کے خود اپنے خلاف. آپ نے انڈیا کی مثال دی، دیکھیں فرانس میں اگر 10% مسلمان ہیں تو انڈیا میں کتنا ایک فرق ہے. مسلمانوں کو مغرب میں کیسے رہنا چاہیے؟ اور فار ایگزامپل ہندوز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو. انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے آتا ہے، انڈیا اگر جیتتا ہے تو انڈین خوشیاں مناتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جب انڈیا اگر جیتتا ہے تو، لیکن اگر انڈیا ہار جائے اور انگلینڈ جیت جائے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انڈینوں نے جا کے حملے کیوں ہوں. یہ انڈینوں میں اور ان مسلمانوں میں فرق ہے. انڈیا کا پہلا جو ہے وہ وزیر تعلیم جس نے سارے انڈیا کے خد و خال طے کیے جو ہے وہ ابو الکلام آزاد ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ ایک حصہ جو ہے وہ ایک مسلمان کو دے رہے ہیں. اس کے بعد صدر کتنے رہے، وزیر خارجہ کتنے رہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بلڈ کرتے اور آپ ایک قدم اور آگے بڑھ کے تو اس بات کا احساس کرتے کہ اس طرح کی جو سوسائٹی ہے جس میں سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، انکلوژن ہے، پلورلزم ہے، یہ ہمارے کتنے مفاد میں ہے. آپ نے الٹے بانس بریلی کو چلانے شروع کر دیے. ریاکٹ کرتے ہیں مسلمان اس طریقے سے؟ جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں اس کا انحصار آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کا احترام کیا جائے گا، اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے خلاف سازش کی جائے گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. مغربی دنیا یہ کہنے میں مجبور ہو جائے کہ جو مسلمان ہیں جن کو 90 کی دہائی سے فنڈامنٹل سے شروع ہو کر ٹیررزم پہ لے کے ختم کیا ہم نے، وہ ہے ہی اس قسم کے ہی. آپ سمجھیں کہ تیلی لگا دی جاتی ہے، چنگاری ڈال دی جاتی ہے، پھر جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، پھر کچھ کام آتا ہے، پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے، اور بڑی بحث ہوتی ہے اس میں. مغربی دنیا میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ کیوں ریاکٹ کرتے ہیں مسلمان اس طریقے سے. سو اس میں کیا، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں اس کا انحصار آپ کی طاقت پہ ہوتا ہے. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کا احترام کیا جائے گا، اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے خلاف سازش کی جائے گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. اور ظاہر ہے عالم اسلام کو اپنے لیے وہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے زمانے سے جب یورپ کا ایک قابل ذکر حصہ اس نے فتح کر لیا تھا. سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ رکے گا. اسلاموفوبیا اب ایک ایمرجنگ فینومینا ہے، ریکگنائز بھی ہے، اور اس میں گاہے بگاہے ہم واقعات دیکھتے رہیں گے. ضروری یہ ہے کہ او آئی سی کے لیول پہ، قوم متحدہ کے لیول کے اوپر ایک ٹھوس جو ہے نا کوئی قدم اٹھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یار یہ ناقابل قبول ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کا آپ کو طریقہ کار نکالیں. آزادی رائے یہ نہیں آپ آزادی رائے ہمیں برا بھلا کہیں. آزادی رائے یہ تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 ارب مسلمانوں کی اس طریقے سے دل آزاری کریں. یہ آزادی رائے آپ کی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب مذہب کا معاملہ آ جاتا ہے تو میرے خیال میں کولیکٹیو اس کے اوپر رسپانس کی ضرورت ہے، جو ابھی تک مجھے مسنگ نظر آ رہا ہے. ٹو بی آنیسٹ اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے کہ سارے جو مسلمان ممالک ہیں، او آئی سی ہے، عرب لیگ ہے، کیا انہوں نے کوئی مشترکہ وفد کہیں پہ بھیجا، کوئی بات ہوئی، کوئی ہنگامی کانفرنس بلائی؟ اس طرح کے ہمیں کچھ نظر تو نہیں آ رہی. سو کوشچن یہ ہے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے سارا فرانس ہی جلا دیا. اور میں دیکھ رہا تھا فار ایگزامپل ہم بڑی تنقید کرتے ہیں جی انڈیا نے کے اندر سے جی کہ انڈیا اسلامزم. میں انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا رہا. جو کرٹیسزم ہے، میری جو تنقید ہے یا میری جو اوپینین سے ڈس ایگری کرنا ہے وہ ڈیموکریٹکلی بھی ہو سکتا ہے. کہ مسلمان سعودی عرب، یو اے ای، قطر میں کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے، اور امریکہ اور فرانس میں کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کیا ہم ان ڈیموکریسیز کو سمجھ نہیں سکے، یا کہ مسلمان یہ چھوٹا گروپ ہونے کی وجہ سے شاید یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم وائلنٹ ہوں گے تو شاید ہماری بات زیادہ سنی جائے گی ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ڈیموکریٹ ہوں گے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ جو رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ویسٹ میں اس لیے کر رہے ہیں کہ اویلیبل ہے اور ویسٹ نے ان کو دیا ہے. یہ رائٹ سعودی عرب میں وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے وداؤٹ کنسنٹ آف دی
अथॉरिटीज, अगर कभी हो भी, पहली बात है होता ही नहीं, लेकिन हो भी तो उनकी मर्जी के बगैर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आप एक तरफ तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको मिसयूज करके खुद अपने खिलाफ। आपने इंडिया की मिसाल दी, देखें फ्रांस में अगर 10% मुसलमान है तो इंडिया में कितना एक फर्क है। तो इसको जरा आप जोड़ के देखें कि जो कुछ इंडिया में आज हुआ है, या कुछ लोगों को शिकवा है कि मुसलमानों के साथ ये हो गया वो हो गया, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि मुसलमान जो है वो कितनी बड़ी एक रिस्पेक्टेबल और प्रिविलेज किस्म की पोजीशन में इंडिया के अंदर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुगलिया दौर, मैं जो है पार्टीशन के बाद पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि 1947 के बाद मुस्लिम जो है दे वर वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज रिलीजन इन इंडिया, आई कैन टेल यू। इसकी मैं आपको 1000 मिसाल दे सकता हूँ। उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख लें कि आपकी जो है पॉपुलेशन 10% या 12% है, लेकिन आपका जो है वो सदर जो है वो मुसलमान बने, और वेरी स्पेसिफिक किस्म का स्पेशल स्टेटस था इंडिया के अंदर। ये किन लोगों ने आपको दिया हुआ था? उन्हीं लोगों ने ना जो टॉलरेंस पे, इक्वालिटी पे, इंक्लूजन पे बिलीव करते थे कि भाई ये सोसाइटी जो है इसमें कई तरह के मज़ाहिब हैं, तो ये लोग जो हैं मार्जिनलाइज्ड हैं, या जिस तरीके से भी इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उस सतह पे नहीं है तो इनको दी जाए, और ये अपने एक ड्यू हिस्से से निकल के आगे इंडिया ने इनको अकोमोडेट किया। इंडिया का पहला जो है वो वजीर तालीम जिसने सारे इंडिया के खद्दोखाल तय किए जो है वो अबू अल कलाम आज़ाद है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा आप एक हिस्सा जो है वो एक मुसलमान को दे रहे हैं। उसके बाद सदर कितने रहे, वजीर खारजा कितने रहे। अब ये क्या था कि बजाय इसके कि आप इस पे बिल्ड करते और आप एक कदम और आगे बढ़ के तो इस बात का एहसास करते कि इस तरह की जो सोसाइटी है जिसमें सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इंक्लूजन है, प्लूरलिज्म है, ये हमारे कितने मफाद में है, आपने उल्टे बांस बरेली को चलाने शुरू कर दिए। कोई कहीं पे जनाब साहब जो है फलां इमाम साहब तकरीर करना शुरू हो गए, कोई कहीं पे शुरू हो गए, जिन्होंने आग उगलनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आप ये क्या समझते थे कि हिंदुस्तान में जो 1 बिलियन से ज्यादा हिंदू हैं वो चुपके से बैठ के तो हमारे ये खताबात और लकाबात और ये जो है नेम कॉलिंग और ये गालियां और ये सारी चीजें जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे, और बद्दुआएं और पता नहीं क्या क्या। तो जाहिर है उसका रिएक्शन भी तो होना था, ये जो हुआ और मुख्तलिफ शक्लों में आपको नजर आया जी फलां ये वाकया हो गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या हुआ, जिसपे आप समझ रहे थे कि ये हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या एज ए मैटर ऑफ राइट ले रहे हैं, उसका क्या हुआ कि जाहिर है उन्होंने एक आपको बाकायदा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों को अहम ओहदे दिए बगैर या अहम पोजीशंस पे फाइज किए बगैर चल सकता है, और पहले से भी बेहतर तरीके से चल सकता है और चल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि एक पार्टी भी अगर ये स्टेटमेंट दे दे जी कि हमें हुकूमत चलाने के लिए या इंडिया के मामला चलाने के लिए हमें मुसलमानों की आशीर्वाद या हमायत की जरूरत नहीं है, तो ये कोई मामूली स्टेटमेंट तो नहीं है। और अगर यही स्टेटमेंट फ्रांस में आए इस तरह की हरकत और सकनात पे कि वाकया स्वीडन में हो, कोई पागल किसी चौथे मुल्क में जो है अपने पागलपन का कोई इज़हार करे, उसके खिलाफ आप एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मुल्क जो है उसको हेल में बदलने की कोशिश करें, रातों रात दुकानें जलाएं और वहां पे थर्ड वर्ल्ड टाइप केओस क्रिएट करें, तो कल अगर फ्रांस की एक पार्टी ये कह दे कि भाई इन लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आपने हिंदुस्तान में क्या कर लिया? तो पता है कि पेरिस में शांज़-एलिज़े कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रसल्स में ग्रैंड प्लेस है, शांज़-एलिज़े पे वर्ल्ड कप जब भी फ्रांस जीता है तो 1-2 मिलियन आदमी जमा होता है, पूरा दूर दूर तक इतनी बड़ी शांज़-एलिज़े इतनी चौड़ी है, दूर दूर तक कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं होती, कभी किसी के साथ कोई फड्डा नहीं होता। लेकिन लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में मोरक्को को फ्रांस ने सेमीफाइनल में हराया, तो जब ये जमा हुए शांज़-एलिज़े में तो इन लोगों ने हमला कर दिया नॉर्थ अफ्रीकन ने। मैं ये कहता हूं कि एक इंडिया सपोज इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने आता है, इंडिया अगर जीतता है तो इंडियन खुशियां मनाते हैं, नो डाउट अबाउट इट,
लेकिन जब सॉरी इंडिया अगर जीतता है तो, लेकिन अगर इंडिया हार जाए और इंग्लैंड जीत जाए तो कभी मैंने नहीं देखा कि इंडियनों ने जाके हमले क्यों हो। ये इंडियनों में और इन मुसलमानों में फर्क है। तो ये एक गलत चीज है। जिस मुल्क ने आपको इज्जत से रहने का मकाम दिया, देखिए मैं दुबई सऊदी अरब में बहुत रहा हूँ, सऊदी अरब में तो मेरा बचपन गुजरा है। आप मुझे ये बताएं कि आज तक इन्होंने इस किस्म के रायट सऊदी अरब में क्यों नहीं किए, दुबई में क्यों नहीं किए? इसलिए कि वो पॉलिटिकली करेक्ट फैसले नहीं करते, वो अपने देश के लिए करेक्ट फैसले करते हैं। चौप चौप स्क्वायर है, ठाक गर्दन उड़ा दी, किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि कुछ करे। आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री में पहली बार परसों बल्कि कल 4 पाकिस्तानी मीना के मैदान में हज के दौरान गिरफ्तार हुए, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की पीटीआई का झंडा लेके खड़े थे। खाली झंडा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं। बिकॉज सऊदी अरब कहती है कि आपको अपने देश की पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में नहीं करनी भाई, आपको इजाजत ही नहीं है इसकी, अपने मुल्क में जाके करो। गिरफ्तार कर लिया, अब इनको जुर्माना होगा, सजा होगी 1 साल 2 साल की, फिर डिपोर्ट होंगे। ऐसे फैसले करने होंगे आपको। मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप यूरोप से सारे मुसलमानों को निकाल दें, इंडिया से सारे मुसलमानों को निकाल दें। आप इनकी और रूट कोज अगेन, बार बार मैंने कहा है पिछले 4 सालों में, रूट कोज अगेन, क्लोज मदरसा, मस्जिद को स्ट्रिक्टली फॉरबिड करें कि सिवाय नमाज के यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा आपने अपना धर्म सिखाना है, घर में सिखाओ। हिंदू जितना भी अपना धर्म सीखता है घरों में सीखता है, अपने अपने माँ बाप से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है। मुसलमानों को भी यही करवाने दो। आप इनकी अलग दुकान को आप बढ़ा रहे हो। यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। मुसलमानों को मगरब में कैसे रहना चाहिए? और फॉर एग्जांपल हिंदूज भी जाते हैं, सिख भी रहते हैं, कोई लार्जली किसी से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं उनको, लेकिन मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा कोई ना कोई मसला रहता है। फ्रांस में 10% मुसलमान हैं। आप सर इसको कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आप लोग थोड़ा सा होश का नाखन लें कि आप हैं कौन, कि आप लोगों के जहन में ये आ गया है कि हम कोई चोजन किस्म की बरगजीदा और दुनिया की सुपीरियर तरीन मखलूक हैं और हमारी कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो हम जिस पे चाहें जाके थोप दें और जाएं भी भिखारी बन के, कश्तियों पे डुबकियां लगा के, जिंदगी और मौत के जो है वो कुएं से गुजर के, लेकिन जाके उनको गिराना है और उनको ये बावर कराना है कि आपकी वैल्यूज जो है वो गार्बेज हैं और हमारे आते ही आप इनको गार्बेज में फेंक दें। ये जिसको मिलिटेंसी कहते हैं, ये तस्वर होता है। ये फ्रांस में जो उछल कूद है किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं? अब जरा इसकी जस्टिफिकेशन तो बताएं ना। पहली बात यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है फ्रांस की सोसाइटी में। 200 साल पहले इनकलाब जिन लोगों ने वहां पे बर्पा किया, मारे खाई और हजारों की तादाद में कत्ल हुए, कुर्बानियां दी, तो उन्होंने अपनी वैल्यूज को डेवलप किया। तो आप आके उनको हुक्म दें कि नहीं वैल्यूज ये नहीं ये होती हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कहें जाके पाकिस्तान में ये नजरिया पाकिस्तान और ये इस्लामिज्म को डिसमेंटल करो, हटाओ और यहाँ पे एक सेकुलर सोसाइटी लगाओ। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये कहे फ्रांसीसी एम्बेसडर वहां जाके, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं समझता हूँ कि इसमें होश के नाखन लेने की बात है। असल मसला ये है और ये देखने की बात है कि इसके पीछे जो माइक्रोस्कोपिक किस्म के ग्रुप छुपे हुए हैं वो बुनियादी तौर पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट या क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट या कहीं भी जो और दूसरे मज़ाहिब के इस तरह के एक्सट्रीमिज्म का शिकार लोग हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक चंद एक पीपल जो है, ये उनका एजेंडा है जिसके आगे पूरी जी उम्मत मुसलमान लग गई, पूरा जी क्रिश्चियनिटी लग गई, पूरी मगरबी तहजीब लग गई। ये जी OIC का इजलास बुला रहे हैं। भाई होश का नाखन लो, अपने गरीबा में झांको, पहले देखो तो सही खड़े कहाँ पे हो। तो क्या बुला रहे हैं? तो फिर ये भी अगर बुला देते हैं तमाम जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज का एक इजलास और उसमें तय कर देते हैं कि आज के बाद वही करते हैं हम जो ट्रंप ने किया था, तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब ये है कि नफरत को नफरत के जरिए हवा देने का ये जो दुनिया में एक तस्वर हम लोगों ने शुरू कर रखा है, इसमें ये देखना चाहिए कि इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिश्चियनिटी। ये बाकायदा एजेंडा है, एक्सट्रीमिज्म का एजेंडा है, जिन्होंने मजहब की आड़